Good morning, students. This is chapter 10, Human Settlements, Book 1, Geography of class 12th. This is part 1. We have taken some part of this chapter and we are discussing now. And you have to be clear that this chapter is from book 1 and chapter 10. As you know, there is a same chapter is given in book 2, that is also human settlement, but that is on Indian context. Now we will start this chapter. What is human settlements? I think you know the answer of this. Let us discuss once again. The study of human settlement is basic to human geography because the form of the settlement in any particular region reflects human relationship with the environment. We can say a human settlement is defined as a place inhabited more or less permanently, okay, where the human beings reside या जहाँ पर भी human beings रह रहे हैं, it can be temporary, it can be permanent, and most of the concerned with the relationship with the environment also. Each settlement, each type of settlement is directly reflects the region or their environment. The houses may be designed or redesigned, buildings may be altered, functions may be changed, but settlement continues in time and space. Where we have to say, यहाँ पर हम क्या समझना चाह रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइंस हैं वो रीडिज़ाइंस हो सकते हैं, बिल्डिंग्स ऑल्टर हो सकती हैं, रेनोवेशंस हम लोग घरों में करते हैं। 10-15 साल के बाद हमें लगता है कि देयर शुड बी सम चेंज, फंक्शंस कैन बी चेंज्ड, लेकिन सेटलमेंट्स जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रहती हैं। नाउ रूरल अर्बन डिकोटमी, it is widely accepted that settlement can be differentiated in terms of rural and urban. So mostly basically we can divide settlements in two parts, that is rural settlements and urban settlements, and what are the main difference according to different areas. But there is no consensus on what exactly defined a village or a town. अगर हम देखें तो रूरल अर्बन सेटलमेंट्स में अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं तो इट इज़ वेरी कंट्री टू कंट्री, यानी कि हर कंट्री में जो डिफ्रेंसिएशन है वो डिफरेंट है. ऑल्दो पॉपुलेशन साइज इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, यू नो कि जो विलेज है दे हैव अ लेस population, whereas in other in urban areas there are millions of peoples are living there, lakhs of peoples are living there. So one of the criteria is population size, but we can't vary we can say it is vary from one place to another or one country to another. अगर हम इंडिया या चाइना की बात करते हैं तो we have a large population, but as compared to Western Europe and United States there are very less population. The basic difference between town and village is that in towns are main occupation of the people, okay, is related to secondary and tertiary sectors. You know that most of the people engaged in urban area, which type of occupation is that? That is a secondary or tertiary, whereas in villages most of the people engaged in primary activities या primary occupations. It can be agriculture, fishing, lumbering, mining, animal husbandry, etc. All these occupations comes under the primary activities. So most of the people engaged in primary activities. This is the basic difference between urban or you can say towns or village. And now this is also one point given in your book and sometimes comes in a paper. What is the meaning of suburbanation, urbanization?
It is a new trend of people moving away from congested urban areas to clear areas outside the city in search of a better quality of living. Important suburbs develop around major cities, and every day thousands of people commute from their homes in the suburbs to their workplace in city. तो सब अर्बनेशन जो है एक नया ट्रेंड आजकल है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन अ टाउन, इन अ अर्बन एरिया, बट दे ऑल्सो नीड क्लीन एनवायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. क्योंकि आपको मालूम है कि अर्बन एरियाज जो है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ इलाका होता है, और घर जो हैं दे आर वेरी कॉस्टली. सो द मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू लिव आउटसाइड, यानी कि बाहर जो अर्बन एरिया है उसके सराउंडिंग में ही एरिया जो है वो ओपन एरिया होता है एंड एनवायरनमेंट इज वेरी गुड. तो वहाँ से ही वो कम्यूट करना पसंद करते हैं एंड दे डेली कम्यूटर्स for their workplace. These type of areas surrounding a main city is also called suburbanization. This is one picture I have taken. This is a countryside picture जहाँ पर लोग clean environment में रह रहे हैं and they have a open area more as compared to urban areas. How do we define urban settlements? Now we come to in the context of India. In census, according to Census of India in 1991 defines urban settlements as all places which have municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee and have a minimum population of 5,000 person. At least 75% of male workers are engaged in non-agriculture pursuits and density of population of at least 400 persons per square kilometer are urban. So it is given in our census. It is defined in Indian census in 1991. These criteria can be changed in coming census also. Now come to the types of settlements. Here we are discussing types and patterns of settlements. Settlements may also be classified by their shape and pattern types. Okay, the major types of classified by shape are, there are two types. Number one is compact, that is also called nucleated settlements, and number two is dispersed settlements. I think you have know the meaning of these two settlements. We have already discussed in India chapter, but let us take a look again. These settlements are those in which large number of houses are built very close to each other. तो सबसे स्पेसिफिकली जो सबसे पहली जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है विच इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड, कि जो घर बने हुए हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में है. सच सेटलमेंट डेवलप अलोंग रिवर वैलीज और फर्टाइल लैंड. कम्युनिटीज आर क्लोजली नेट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस. तो नॉर्मली इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं कहाँ पर है, या तो रिवर वैलीज में होंगी या फर्टाइल प्लेन्स में होंगी, एंड दे आर मोस्टली connected with some common type of occupation. Another is dispersed settlement. In these settlements, houses are spaced far away. Yeah, they are away from one house to another and often interspread with fields. आसपास खूब सारी फील्ड्स होती हैं और दूर दूर वही घर बने होते हैं. द कल्चर फीचर्स सच एज प्लेस ऑफ वर्शिप और मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर. तो वहाँ का जो कल्चरल फीचर है वो कौन सा है, वो एक सेटलमेंट कैसे कहलाएगा. घर तो इनके दूर दूर होंगे और फील्ड्स के बीच में होंगे, बट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. द प्लेस विच इज कनेक्टिंग देम दैट इज अ वर्शिप प्लेस, टेम्पल और चर्च और एनी अदर, और मार्केट प्लेस. जो मार्केट प्लेस है और जो वर्शिप प्लेस है दैट इज वन, एंड अदरवाइज दे आर लिविंग फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर.
So this type of settlement is called dispersed settlements. ठीक है. Rural settlements are most closely and directly related to land. ठीक है. अगर हम रूरल सेटलमेंट्स की अब बात करेंगे डिटेल में, तो सबसे पहला उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दैट इज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंड एंड एनवायरनमेंट. They are dominated by primary activities. As you know कि फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक डोमिनेटेड बाय द प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज है सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुओं का पालन करना, मछली पकड़ना, है ना, और कृषि करना, ये सब कार्य जो है मोस्टली गाँव में या ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किए जाते हैं. द सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली स्मॉल. अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के गांव जो हैं या जो जिन्हें हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, इनका साइज जो है, आकार जो है, वो मोस्टली छोटा होता है एज कंपेयर टू अर्बन सेटलमेंट्स. Now the question arise factors affecting the location of rural settlements. तो कहाँ पर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये रूरल सेटलमेंट्स बन जाती हैं या डेवलप हो जाती हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स? ऐसे कौन से कारक हैं जो कि उनको केंद्रित करने के लिए इफेक्ट करते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं. तो सबसे बेसिक फैक्टर जो है दैट इज वाटर सप्लाई. जहां पर भी पानी की उपलब्धता है, दिस इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो गांव सबसे पहले डेवलप हुए हैं, शहर बाद में उनका विकास हुआ है. तो सबसे पहले जो हमारे कस्बे और गांव जो हैं वो विकसित हुए हैं, तो रूरल सेटलमेंट्स ही हुए हैं. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पर उसको इफेक्ट करता है दैट इज ए मोस्ट नीडफुल इज वाटर सप्लाई. Usually, rural settlements are located near a water bodies such as river, lake, springs, जहाँ से उन्हें आसानी से पानी जो है मिल जाए. Sometimes the need for water drives people to settle in otherwise disadvantaged sites such as islands surrounded by swamps and low-lying river banks. नॉर्मली देखा जाता है कि जहां पर पानी आसानी से मिल रहा है वहां पर तो वो सेटल होते हैं, बट इसका एक डिसएडवांटेजेस भी कई जगह पर देखा जाता है कि जहां पर पानी अवेलेबल होता है दैट इज ए लो लाइंग एरिया, जहां पर फ्लड्स या दलदल या स्वैम्प्स जो है वहां पर ज़्यादा हो जाते हैं जो कि उनको इफेक्ट करते हैं. रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरिगेटेड फार्मलैंड, क्योंकि उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है कृषि करना. तो रिवर्स इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं या लेक्स इसलिए भी वहाँ का पानी जो है वो मोस्टली किस में यूज़ करते हैं, खेती करने में. वाटर बॉडीज ऑल्सो हैव फिश, तो वहाँ पर मछली पालन भी किया जाता है, मछलियों को पकड़ा भी जाता है. एंड सो मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस. नेविगेशन का मतलब यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है. This is one picture. Another point is land. Land किस तरह की है जहाँ पर रूरल सेटलमेंट्स आसानी से स्टेब्लिश हो जाती हैं. तो ये लैंड जो है इट कैन बी मस्ट बी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो ये जो एरिया है दैट शुड बी फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होना चाहिए, क्योंकि इनका बेसिक जो ऑक्यूपेशन है दैट इज एग्रीकल्चर. In Europe, villages grew up near rolling country, avoiding swampy, low-lying land, while people in Southeast Asia choose to live near low-lying river valleys and coastal plains suited for wet rice cultivation. अगर हम कंपैरिजन करते हैं यूरोप के विलेजेस के साथ एशिया के विलेजेस को, तो एशियन कंट्रीज जो हैं वो मोस्टली उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है that is agriculture, and mostly they interested to live near the river valley area or in a coastal plains because they have a main cultivation is wet rice cultivation. ठीक है, तो यानी कि धान की खेती जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है. तो ये उसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी जो है आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर राइस कल्टीवेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वेयर एज इन यूरोपियन कंट्रीज वहाँ के विलेजेस में क्या होगा कि जहाँ पर लो लाइंग एरिया है या स्वैम्पी एरिया है,
वहां पर लोग नहीं पसंद करते रहना, और मोस्टली उनका काम क्या है, गांव में लंबरिंग करना या पेड़ों को काटना, इस तरह के काम जो है वहां पर विलेजेस में ज्यादा देखने को मिलते हैं। Now upland which is not prone to flooding was chosen to prevent damage to house and loss of life. Thus, in low-lying river basins, people choose to settle on terraces and levees which are dry points. In tropical countries, people build their houses on stilts near marshy land to protect themselves from flood, insects and animal pests. So this is also one factors affecting the distribution of rural land, that is upland. जिन rivers में frequently floods आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती हैं, तो पीपल दे वांटेड टू चूज ड्राई पॉइंट्स। ड्राई पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जहां पर रिवर बेसिन है वहां पर दे मोस्टली डू द एग्रीकल्चर, वहां पर वो कल्टीवेशन करेंगे और रहने के लिए वो ड्राई पॉइंट में यानी कि अपलैंड पे चले जाएंगे जहां पर उनके गांव बसे हैं। ठीक है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज जहां पर बहुत बारिश होती है तो वहां पर भी नॉर्मली क्या है कि लोग घर जो है वो स्टिल्ट्स के ऊपर बनाते हैं, यानी कि जो घर है थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है और उसके ऊपर घर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो जहां पर फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते हैं, मार्शी लैंड है, दलदली भाग है और बहुत ही दिस ट्रॉपिकल एरिया है, बहुत बारिश होती है और बारिश में जंगल और जो लताएं हैं या जो क्रीपर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो नीचे जो रहना जो है ऑन द लैंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव, सो दे मेक द हाउस ऑन स्टिल्ट्स। और उस स्टिल्ट्स के कारण क्या है कि घर जो है वो ऊंचा होता है और उससे फ्लड से भी बचा जाता है और इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो हैं उनसे भी बचा जाता है। This is one picture. Another is building material. The availability of building material, किस तरह का मटेरियल जो है वो रूरल एरियाज में यूज होगा। नॉर्मली पीपल जो गांव के लोग हैं वो सराउंडिंग में जिस तरह का मटेरियल है उसी से ही वो घर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर लिविंग नियर द फॉरेस्ट एरिया दे मोस्टली यूज द वुड पार्ट, और अगर उनकी सेटलमेंट्स जो हैं वो डेजर्ट एरियाज में हैं तो वहाँ पर स्टोन उनको आसानी से मिल जाता है तो स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। अर्ली villages were built in a forest, clearing with wood was plentiful. In lowest areas of China, cave dwellings were important, and Africa, savanna buildings material were mud bricks, and the Eskimos in polar regions use ice blocks to construct igloos. तो you can see this is the example कि जो गांव जो है फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके बनाए गए हैं वहां पर दे हैव अ प्लेंटी फुल ऑफ वुड, बहुत सारी उनके पास लकड़ी है, तो इसलिए वो गांव जो है वो मोस्टली घर में लकड़ी का इस्तेमाल मैक्सिमम करते हैं। अगर हम चाइना के लोएस्ट एरियाज की बात करें तो वहां पर केव ड्वेलिंग्स जो हैं वो स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी, यानी कि लोग गुफाओं में रहते थे जो शुरू के स्टार्टिंग के जो विलेजेस थे। इसी तरह से अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, सवाना जो लैंड है वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल के जो इस्तेमाल किया जाता है वो मड मिट्टी जो है वो ठंडी होती है और ये एरिया गर्म है, तो मड मिट्टी यानी कि मड्स की बनी मिट्टी की बनी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एस्किमोस जो है वो पोलर एरियाज में रहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न पोल एरिया जहाँ पर 12 महीने बर्फ जमी होती है, बहुत ठंडा इलाका है, तो वहां पर दे यूज आइस ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट द इग्लूज। वो बर्फ के बने हुए जो ब्लॉक्स हैं उनसे इस्तेमाल करते हैं और इसको इग्लूज जो है कहा जाता है। डिफेंस पर्पस के लिए भी दिस इज ऑल्सो वन मेन फैक्टर या फैक्टर अफेक्टिंग द
लोकेशन ऑफ रूरल एरियाज, डिफेंस, अपने आप को सुरक्षित रखना, नेबरिंग जो इलाके हैं या किसी बाहर के जो अटैकर्स हैं या कोई उसके ऊपर अटैक ना कर दे, तो उसलिए डिफेंसिव हिल्स एंड आइलैंड्स जो हैं इस तरह के भी विलेजेस ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर बिल्ड किए हैं. ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी of neighboring groups, villages were built on defensive hills and island. This is the picture I have taken from the Nigeria. Nigeria में upstanding inselbergs formed good defensive sites. ये इस तरह के जो पहाड़ हैं, ये इसके ऊंट पर ये घर बनाए जाते थे ताकि दूर से पहाड़ के पीछे की तरफ किस तरह के गांव हैं कि नहीं है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड इन अ हायर ग्राउंडलैंड और हिल्स. इंडिया में, भारत में जो है वो गांवों को प्रोटेक्ट किया जाता था किससे? खूब सारे फोर्ट्स, महल और हिल्स के पास दीवारें जो है बनाकर गांव को प्रोटेक्ट किया था. दिस इज ऑल फॉर द डिफेंसिव पर्पस. See, this is the one picture of taken from the Indian context. Now, planned settlements क्या हैं? Planned settlements sites that are not spontaneously chosen by the villagers themselves. ऐसा नहीं है कि जो planned settlements है वो ऐसा नहीं है कि villagers उसको choose करते हैं और उसके बाद वहाँ पर गांव विकसित हो जाते हैं, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता. जबकि planned settlements are constructed by government by providing shelter, water and other infrastructure on acquired land. तो इस तरह के जो planned settlements है वो मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है कि दो लोग वहाँ पर आएँ और वहाँ पर रहें, and they are providing basic infrastructure, for example shelter, water and other things. The scheme of villageization in Ethiopia, इथियोपिया में इसी तरह से गांवों को बसाया गया है. और इसी तरह से भारत में इंदिरा गांधी कैनाल जो है, कैनाल कॉलोनीज जो है इंदिरा गांधी कैनाल के पास, कमांड एरिया के पास, दिस इज द गुड एग्जाम्पल. तो यहाँ पर भी इस तरह के गांवों को एस्टेब्लिश किया गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूरल सेटलमेंट पैटर्न. पैटर्न यानी कि उनकी शेप्स किस तरह की होती है नॉर्मली और वो किस पैटर्न के नजर आते हैं. तो पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स रिफ्लेक्ट द वे द हाउसेज आर साइटेड इन रिलेशन टू ईच अदर. The site of village, the surrounding topography and terrain influence the shape and size of village. तो जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृतियां हैं, उसके आसपास का जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, स्थलाकृति किस प्रकार की है, वहां पर ऊंचावच किस प्रकार का है, वो सब चीजें जो हैं विलेजेस की शेप और साइज के पैटर्न को इफेक्ट करती हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑन डिफरेंट बेसिस. सो मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन या डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स. ठीक है, तो इसको आपने पर्टिकुलरली समझना है कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है. अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑन द बेसिस कुछ आता है तो यहाँ से आपका आंसर आएगा. ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग्स में हम बात करेंगे तो देयर आर मेन टाइप्स ऑफ प्लेन विलेजेस. बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स का मतलब वो विलेज जो है, वो गांव जो है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, सेटिंग क्या है. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ विलेजेस. जो विलेज प्लेन एरिया में है दैट इज प्लेन विलेजेस, प्लेटो विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस, डेजर्ट विलेजेस, है ना. तो ये सम एग्जांपल्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, गांव के कई अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं. ऑल्दो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद प्राइमरी एक्टिविटीज, बट सम villages have some specific primary activities. That is we can say farming villages, fisherman villages, मछुआरों का गांव, lumberjack villages, लकड़हारों का गांव, पेस्ट्रल विलेजेस, चरवाहों का गांव. तो इस तरह से हम अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की उनका बेसिकली क्या फंक्शन है वो उस गांव के नाम पर जाना जाता है.
ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पर फॉर्म्स एंड शेप्स की बात जो हम करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करेंगे कि समटाइम्स क्या है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं उनके पैटर्न को डिसाइड करने के लिए। एंड दीज शेप्स सच एज लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार लाइक, टी शेप विलेजेस, डबल विलेज, क्रॉस शेप्ड विलेजेस, ये अलग अलग तरह के विलेजेस हैं। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं। On the basis of forms or shapes of the settlement, this is called, number one is linear pattern. linear pattern क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको पैटर्न बताने के लिए आपने विलेजेस का पैटर्न जो है उसको आपने डिस्कस करना है यहाँ पर। इन सच सेटलमेंट्स हाउसेस आर लोकेटेड अलोंग अ रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल एज ऑफ अ विलेज और अलोंग अ लेवीज। अब आपने देखा होगा कि रोड जो है वो सीधी है, लीनियर है, रेलवे लाइंस जो हैं वो सीधी जा रही हैं, रिवर्स और कैनाल्स जो हैं उनके एजेस के किनारे भी घर बनाए जा सकते हैं, वो लीनियर पैटर्न में आएंगे। तो इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स हैं इनको हम लीनियर पैटर्न सेटलमेंट्स कहेंगे। Another is rectangular pattern. Such patterns of rural settlements are found in a plain areas, wide intermountain villages. The roads are rectangular and cut each other in a right angle. अगर क्रॉस रोड्स जो हैं वो बनी हुई हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न में घर हैं, तो दोज टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैटर्न. Here are some one diagram is given. Whenever you attempt this question, you have to draw this diagram. Here you see in first part, this is a linear pattern. ये देखिए सीधे जो है ये यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है और मे बी दिस इज रोड और इसके दोनों तरफ जो है घर सीधे सिधाई पे बने हुए हैं. दिस इज ए क्रॉस शेप पैटर्न, एक रोड इधर जा रही है दूसरी उधर जा रही है, दिस इज क्रॉस हो रही है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस शेप पैटर्न. यहाँ पर देखिए देयर इज ए नोडल पॉइंट, यहाँ पर एक स्टार शेप है, इसको हम कह सकते हैं. इस पॉइंट से अलग अलग जगहों पर रोड जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं और निकल रही हैं. तो दिस इज कॉल्ड स्टार लाइक पैटर्न. Here you can see this is one main road and उसके बाद यहाँ पर कट एक अलग रोड का है, इधर दूसरी रोड चलेगी है. तो बेसिकली दिस इज टी शेप पैटर्न. टी के आकार की ये जो शेप है दिस इज टी शेप पैटर्न. यहाँ पर देखिए सर्कुलर पैटर्न, मे बी दिस इज सम लेक, पॉन्ड हो सकता है और पॉन्ड के किनारे जो है ये पूरा विलेज जो है वो स्टैब्लिश हो गया है. सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर पैटर्न. ठीक है. ये है डबल पैटर्न. डबल पैटर्न, ये रोड आ गई है और यहाँ पर कैनाल है, तो कैनाल के पास भी है और रोड के पास भी जो है ये जो घर बने हुए हैं. तो दिस इज, यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं, रोड भी है और कैनाल भी है, तो दिस इज कॉल्ड डबल पैटर्न. तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट डायग्राम रिलेटेड टू रूरल सेटलमेंट पैटर्न. पैटर्न से जब भी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम in your answer. Circular pattern, I have already discussed. Circular villages develop around lake, tanks, and sometimes the village is planned in a such a way that the central part remains open and is used for keeping the animals to protect them from wild animals. जब ये इस टाइप का पैटर्न कहाँ पर होगा, जहाँ पर लेक है या टैंक है, सेंटर में हुआ. और समटाइम्स लोग जो हैं विलेजर्स कई बार इस तरह का भी प्लान कर लेते हैं कि बीच का पार्ट्स जो है वो ओपन एरिया, ग्रासलैंड एरिया है, जिससे कि जंगलों का या कि फॉरेस्ट एरिया से आने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए. तो दैट टाइप ऑफ सेटलमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर पैटर्न. अनदर इज स्टार लाइक पैटर्न. यहाँ पर जैसे कि सेवरल रोड्स जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं और एक स्टार शेप जो है बन जाती है. दैट टाइप ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड स्टार लाइक सेटलमेंट.
देयर आर सम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की शेप जो है उस तरह की भी कुछ सेटलमेंट्स होती हैं, जिसे हम टी शेप, वाई शेप, क्रॉस्ड शेप और क्यूरिसी फॉर्म सेटलमेंट्स जो हैं इसको भी हम कहेंगे। तो जहाँ पर टी शेप बन रहा है या वाई शेप बन रहा है या इस तरह की शेप्स जो क्रिएट होती हैं और उसके सराउंडिंग में जो सेटलमेंट्स बन जाती हैं, घर बिल्डअप हो जाते हैं, those settlements are called T shape, Y shape, cross shaped or cruciform settlements. Again this diagram is shown for you. This is double village. Double village का मतलब ये है कि settlement extend both sides of river as well as there is a village bridge or a ferry. ठीक है, this is one diagram. This is double pattern diagram. Now this is the another topic in your book, that is problems of rural settlements, यानी कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की सबसे बड़ी समस्या जो है दैट इज पुअर इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से यानी कि एमिनिटीज जो हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, वो पूरी तरह से नहीं होती। रूरल सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज अगर हम बात करते हैं, एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं, तो दे आर पुअर इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड्स अच्छी नहीं हैं, घर कच्चे बने हुए हैं, पानी की सुविधा नहीं है, तो ये ऑल दिस टुगेदर वी कैन से पुअर इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? सप्लाई ऑफ वाटर इज द मेन पॉइंट। रूरल सेटलमेंट्स जो हैं जैसे जैसे एनलार्ज होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, उनके पास पानी की सुविधाएं, मेनली सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो एडिक्वेट नहीं होता। वाटर बॉर्न डिजीजेज इज द मेन और कॉमन प्रॉब्लम इन अ रूरल एरियाज, जैसे जॉन्डिस है, कॉलेरा है, ये इस तरह की जो पानी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो नॉर्मली गाँव में देखी जाती हैं। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशन ऑफ ड्रॉट और फ्लड, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, या तो वहाँ पर अकाल पड़ता है, ड्रॉट आ जाता है, या फिर बाढ़ें जो हैं वो ऑफनली आ जाती हैं। क्रॉप कल्टीवेशन सीक्वेंस इन एब्सेंस ऑफ इरिगेशन ऑल्सो सफ़र, कई बार सुविधाएं नहीं होती, इरिगेशन सिस्टम इज़ नॉट गुड, तो क्रॉप जो है वो ख़राब होती हैं और जो किसान हैं उनकी ये ऑक्यूपेशन जो है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। The general absence of toilet and garbage disposal, this is the basic problem. हमेशा हम गांव में जब जाते हैं तो हम हाइजीन की समस्या सबसे बड़ी होती है कि नॉर्मली घरों में टॉयलेट्स नहीं होते हैं और जो कूड़ा करकट है जिसे हम गार्बेज डिस्पोजल कहेंगे, वो उसका प्रॉपर निपटान जो है वो ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, दैट क्रिएट्स द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटीरियल, जो बिल्डिंग मटीरियल है वो भी प्रॉपर नहीं होता, उसका डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते और दे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि गांव जो फॉरेस्ट एरिया के पास है वहाँ पर नॉर्मली वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो इकोलॉजिकल रीजन के अकॉर्डिंगली ये वेरी करते हैं। द हाउस मेड अप ऑफ मड, वुड, थैच remains susceptible and damage during heavy rains। ये कच्चे घर होते हैं, मड के बने होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं, घास फूस के बने होते हैं और नॉर्मली जब बहुत तेज बारिश होती है या फ्लड्स आते हैं तो ये नॉर्मली डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो विलेज एरियाज में ही आता है। अनमेटेड रोड्स, लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशंस, किसी तरह का मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं है और नेटवर्क इज़ नॉट गुड, रोड कच्ची होती हैं जो कि हमेशा ही निकलना वहाँ से एक भारी समस्या जो है गाँव में देखने को मिलती है। हेल्थ कंडीशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन ए रूरल एरिया, दे हैव ए बिग प्रॉब्लम, still this is the big problem in a rural areas.
You can see these pictures from the rural areas. Education system is not adequate, as well as health system is also not adequate. Now this is the assignment 1. The questions from this part is, number 1 is what is settlement, another is define urban settlement according to census of India 1991, describe rural settlements on the basis of shape and pattern, explain factors affecting rural settlements, डिस्क्राइब रूरल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर आपने जो डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूरल एरिया सेटलमेंट्स, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो समस्याएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं उसको डिस्कस करना है। ऑल दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम दिस part of the video. I hope you understand this part of the video. We will meet soon. Thank you for watching video. Thank you. Bye bye.